پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی قرآن حکیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سارے بندے ایک بار دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ قابل صحت احترام سامعین مکرم، موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے وقت مقررہ پر آنا ہے اور ہر ایک کے لیے آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر زندہ چیز نے مرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سب نے مرنا ہے، اسے رخصتی نہیں ہے کسی کو۔ کوئی بادشاہ ہو یا غلام، کوئی طاقتور ہو یا کمزور، اور کوئی امیر ترین انسان ہو یا غریب، اسے وقت مقررہ پر جانا ہے۔ قابل صحت احترام سامعین مکرم، شاہ صاحب بڑے ہنس مکھ انسان تھے، بڑے بااخلاق، خاندانی پس منظر ہے، بڑے بااخلاق پورا ان کا خاندان ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور بطور انسان سے بے شمار کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان اسی لیے انسان ہے کہ کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ وہ ساری مغفرت فرمائے، آمین۔ قابل صحت احترام سامعین مکرم، جنازے کو اور موت کو آسان اور یوں ہی ایک روٹین کی کاروائی نہیں سمجھنی چاہیے۔ ہم روٹین کی سمجھتے ہیں، یہاں جنازہ ہے، وہاں جنازہ ہے، دوڑو دوڑو جنازہ پڑا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑا، کیوں آئے تھے، کل ہماری باری ہے۔ جس فرد پر اور جس گھر میں یہ موت آتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہوا ہے، اور انسان جب معاشرے سے جاتا ہے، کسی بھی درجے کا انسان ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے، اور نقصان کا احساس اسی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں زندہ انسانوں کا احساس ہو۔ جہاں لاکھوں لاشیں چل پھر رہی ہوں وہاں احساس نہیں ہوتا، 100 مر گیا تب بھی برابر، 1000 مر گیا تب بھی برابر۔ نہ زندے کا احساس، نہ موت کا احساس، انسانیت کا احساس ہونا بنیادی چیز ہے۔ انسان اسی وقت مر جاتا ہے جب دوسرے انسان کا احساس مر جائے۔ قابل صحت احترام سامعین مکرم، انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ رب جو ساری کائنات کے اندر ساری چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، اور اس انسان کو یہ رب کو مانے یا نہ مانے، رب اسے اپنا خلیفہ مانتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ یہ انسان میرا خلیفہ ہے، اور پھر اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات کی ساری چیزیں میں نے خلیفہ کے لیے بنائی ہیں۔ راستے پر چل یا حق کے راستے پر، کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور انسان کو یہ کہا گیا کہ انسان، وہ مالک جو تجھے پیدا فرما رہا ہے اس نے تیری زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اور اس مقصد کے اوپر تیری نظر رہنی چاہیے۔ روزانہ میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ ہر عمر کا انسان جا رہا ہے،
बीमारी मौत के लिए शर्त नहीं है, कोई तकलीफ भी शर्त नहीं है। वक्त मुकर्रा जब आ जाए, इंसान सोया हुआ होता है, जागता नहीं, चला जाता है। मामूली सा ठोडा लगता है, गिर जाता है, मर जाता है। इंसान कहते हैं अभी जा रहा था, रास्ते में गिर गया है। एक इंसान गाड़ी की चाबी फेरने जाता है, करीब नहीं जा सकता, पहले हाथ फैला के मर जाता है। ये हम सब के सामने ये होना चाहिए कि कल हमारी बारी है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा फरमाया और खुद कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी नियामतें की है तो गिनती नहीं कर सकता। भले तुम्हारा दावा है कि मेरे पास कंप्यूटर है और मेरे पास साइंसें हैं, सिर्फ तेरे वजूद के अंदर इतनी नियामतें हैं और इसकी कीमत पे हो रही है। डॉक्टर साहब खड़े हैं, सिर्फ एक फेफड़े काम ना कर रहे हूं, डायलिसिस पर हूं, तो 24 घंटे के कम आज का 5 से 10,000 मशीन लेती है। और रोजाना हम सबके फेफड़े मशीन पर लगे हों तो एक दिन की कीमत मालूम कर लें। ये बड़ी बड़ी जमीनें सारी बेच दें तो एक महीने का डायलिसिस नहीं पूरा हो सकता। ये वो मालिक है जो बगैर कीमत के दे रहा है। ये धड़कते दिल जिसकी धड़कन जरूरी है, स्पीड से ऊपर हो जाए तो हार्ट अटैक करती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए सारी जमीनें बिक जाएं तो कंट्रोल नहीं होता। फिर क्या है कंट्रोल करने वाला? वो अल्लाह है, उसकी तरफ तवज्जो दें, उसको पहचाने, उसको माने और उसकी बात माने। और उसने ये कहा है कि इंसानों, मैंने अपनी किताब में लिखा है खलकल मौत वल हयात। मौत ये है और हयात बैठी हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है। अगले मरहले पर मुझे और आपको लेटना है। इन दोनों को क्यों पैदा किया है? मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कौन बंदा अपने मालिक को मानता है, कौन बंदा मालिक की बात मानता है। और ये बात आसानी से समझ नहीं आती। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, खातमुन नबीयीन तक 1,24,000 मिसाली तरीन इंसान पैगंबर बनकर आए ये बात समझाने के लिए। और अभी तक हमें समझ नहीं आई, अभी तक हमें समझ नहीं आई। हम यही समझते हैं कि दुकान चलाना हमारा मकसद, 4-6 बच्चे पैदा करना मकसद, दुबई लाहौर पिंडी जनाना मकसद। हम जा रहे हैं, हम मुंह में कभी कभी बुजुर्गों के पास बैठे तो वो हाथ पर हाथ धरे हुए ये कहते हैं जी कि मकसद पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया है? 2 बेटे दुबई, 3 की शादी, फारूक हो गया। उनका मकसद यही था, 2 की शादी, 3 को बाहर निकालना। हम समझे ये मकसद है, ये मकसद नहीं है। वो अल्लाह रिज़्क देने वाला है, वो प्रोसेस बनाता है। अल्लाह ने मकसद ये पैदा किया है कि मैं तुम्हारे अमाल देखना चाहता हूं, छोटे से इंसान के भी, बड़े इंसान के भी, कि तुम्हारे क्या अमाल हैं। अमाल की अगर बात मैं आपके सामने रखूं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया पर एक सर्वे करवाया गया है किस मुल्क के लोग सच बोलते हैं। 50 के 50 वो मुल्क हैं जो ईसाई हैं, एक मुल्क मुसलमानों का उसमें नहीं आया। हम झूठी कौम है, अज़ानें सुने, तकबीरें सुने और नारे सुने तो हमारे, लेकिन हमारा तारफ दुनिया पर झूठी और मक्कार कौम का नाम है। हम समझते हैं कि शायद हम अमाल हैं, हमारे अमाल। अल्लाह कहता है मैं अमाल देखूंगा। अमाल क्या है कि एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करता है, वालिदैन बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, पड़ोसी से क्या करता है, मियां अपनी बीवी के साथ क्या बर्ताव करता है, मां अपनी बेटी और बेटे के साथ क्या बर्ताव करती है, दुकानदार गाहक के साथ क्या बर्ताव करता है, लीडर कारकुन के साथ क्या बर्ताव करता है, उस्ताद बच्चे के साथ क्या बर्ताव करता है। ये अमाल है। हम समझते हैं कि शायद वही अमल है जो दौड़ के हम मस्जिद में दाखिल हुए। नहीं नहीं नहीं, वो एक अमल है, 99 बाकी अमल है। क्या बोलते हो, क्या खाते हो। और हम ये समझते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ नौजवानों को हमने दाढ़ियां रखाई तो घर से बड़ा प्रेशर आया, क्या तुम्हारी उम्र है, अभी बच्चे हो दाढ़ियां रख लिए, मुल्ला मियाने बन गए,
भाई लाठी टेक टेक कर चलेंगे, दाढ़ी भी खूब छोड़ेंगे, अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, अभी खाओ पियो। ये वालिदैन की तरफ से आए। कुछ बच्चों को हमने मस्जिद के साथ जोड़ा, तो एक वाले साहब ने कहा ये क्या तुम मसीतोड़ बन गए, हर वक्त तंजे में जोर लगाते हो। हम चौधरी और राजे हैं, आओ दंगा मुश्ती करें, बाद में तौबा कर लेंगे। और कौन तुम्हें उम्र देगा मरने की, तौबा करने की? कौन तुम्हारी जिंदगियों को बदलेगा? और हम ये समझते हैं कि अल्लाह की बात करना, अल्लाह के रास्ते पर जाना, जो 2-4 मौलवियों बेचारों का टन, हमारा क्या तल्लुक है? हम जमींदार हैं, कारोबारी हैं, खड़पेंच हैं, सियासी हैं, ये हमने रखे हुए बंदे। और आज ये एक सोच बन गई है, वाले साहब मरे हैं, 4-5 बंदे रखे जंतु में पहुंचा के आ जाएं, बाकी फारग है। बताइए, बाप मेरा मरा हो, मैं किसी को पैसे देकर कब्र पे बिठवा के कितनी मोहब्बत से जन्नत में जाएगा वो? बाप मेरा है, मेरे लिए दुबई में दावड़े उठाता है, मेरे लिए बर्तानिया के सारी रात मशीन पर चलता है, और जब मरता है तो मैं आगे बंदे बिठाता हूं किराए के। क्यों? मैं अल्फ बे नहीं जानता, मैं बाप को हुस्न नहीं करवा सकता, मैं वलायती हूं, मैं डॉक्टर और प्रोफेसर हूं, मैं बाप का पूरा हुस्न नहीं करवा सकता। बाप मरे तो मुझे ये काली नहीं, बाप मर गया मुझे ये काली है कि इस्तंजा कौन कराएगा, मुझे ये काली है कि जनाजा कौन पढ़ाएगा। अगर कह दिया जाए कि चौई साहब बाप मरा है, जरा चौई साहब को बुलाइए जनाजा पढ़ाएं, चौई साहब की अपनी मौत हो जाएगी, मुझे जनाजे के लिए कह रहे हैं, मैं तो जनाजा जानता ही नहीं, कौन पहचानेगा ये अमाल? काबिल साहिब एहतराम, ये तर्ज अमल बताता है कि हम अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हैं, ये तर्ज अमल बताता है हम संजीदा नहीं है। हमारी जमीन पर कोई कब्जा करे तो हम संजीदा है, सर फोड़ देते हैं। अल्लाह का दीन जया हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, दूसरे इंसान मर जाए हमारे कान पर जू नहीं रींगती, हमें कोई पत्थर मारे पीछे से तो हम FIR करवा देते हैं। हम संजीदा हैं अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। इंसान वो है जो दूसरों को संभाले, जो दूसरों का फिक्र करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, उलमा अहले इल्म में, हदीस कुदसी वो होती है, बात अल्लाह की होती है, बता रहे रसूलुल्लाह होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ये कहता है सारे इंसान मुझे माने या ना माने मेरा कुंबा है, और इनमें से मुझे वो अच्छा लगता है जो इंसानों को संभाले। बताइए, हम इंसानों को संभालने वाला रवैया है? हमने इतनी इतनी डांगे रखी हुई हैं, किसी को नीचे से चढ़ाते हैं, किसी को ऊपर से, फिर भी जिंदा रह जाए तो हम कहते हैं कि हम साहब। पड़ोसी हमसे नाला, गरीब हमसे पनाह मांगता है, कोई बड़ी सारी बरादरी हो, 4 घर गरीब के हों तो अरली पर चढ़ जाते हैं। तुम कौन हो? इस बस्ती में रहने वाले, तुम हमारी मर्जी के खिलाफ चलते हो, हम खुदा बने फिरते हैं। खुदा एक है, सारे खुदा बनने की कोशिश न करें। ये फिरौन का जिक्र कुरान में क्यों आया है? उसने भी कहा था अपनी कौम को कि जिसको तुम खुदा कहते हो ना होगा खुदा, लेकिन मैं बड़ा खुदा हूं, मैं रब्बुल आला हूं। तो फिर अल्लाह ने रखा मिस्र के उस अजायब घर में ताकि पीछे कोई और खुदा ना आए। काबिल साहिब एहतराम, जिंदगियों के मुकासदे ये नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं, 8 बेटे हैं, 36 पोते हैं और आगे 10 दोतरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बड़े हो गए। ये क्या बड़े हुए? क्या हमारी बस्तियों में अमन है? क्या सलामती है? क्या चोरी नहीं है? हर तीसरे दिन बाजार में दुकानें टूटी होती हैं। एक दिन एक चोर बड़े राह से शुरू करता है, सुमलार तक जाता है, कानून ऊपर नीचे हुआ, चोर नहीं मिला। जाइए उन काफरों में, जर्मनी की खातून रिटायर्ड होती है 16 साल में, इक़्तिदार से हटती है, वो कहती है 16 साल में जर्मनी में एक चोरी नहीं हुई। हम मुसलमान हैं, शाम के बाद बच्ची बाहर फिरे तो उठा के ले जाते हैं चाचे के बेटे, मुयस्सर नहीं आती। काबिल साहिब एहतराम, जिंदगियों के मुकासदे अल्लाह जांच रहा है। अल्लाह के रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, और जब रिकॉर्ड दुरुस्त ना हो तो फिर अल्लाह एक मौका देते हैं, तौबा करो, पलट जाओ। आओ हम सारे तौबा करें और रब से माफी मांगे और इंसान बने
جس بستی سے گزر رہے ہوں لوگ احساس کریں کہ انسان جا رہا ہے. آج تک ہم جس بستی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. بلا آ رہی ہے، یا تو راستے میں مارے گا، یا شام کو پولیس سے اٹھوائے گا، یا گنڈو سے بیٹی اٹھوا دے گا. تو جناب 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 کر کے دن نکالتے ہیں. خوف نے انسانوں کو دے، انسانوں کو آزاد کرے. انسانوں کو پوچھنے والا ان کا رب ہے، ہم نہیں ہیں. آئیے اپنے اعمال پر نظر کیجئے، چیک کیجئے کیا ہمارے اعمال ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے تو مبارکباد کے مستحق ہے، نہیں ٹھیک تو توبہ کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. زبردست. محترم مقدم سامعین حضرات، یہ شاہ صاحب تھوڑی سی سخت طبیعت کے مالک تھے. اگر ان کی زبان سے کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو تو راہ خدا معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ بھی سید اجاز سے شاہ صاحب نے اعلان کرایا ہے، وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے اگر کسی کا لین دین، کیونکہ شاہ صاحب کی اچانک موت ہوئی ہے تو لہٰذا اگر کسی کا لین دین ہو تو ان کے بیٹے سے، ان کے بھائیوں سے رابطہ کر سکتا ہے. اور جو دور کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے کھانا پکا ہوا ہے، وہ کھانا کھا کر جائیں. یہ پیچھا چلو بندے، تھوڑی پیچھے جاؤ نا جی. نہیں رخ چینج کرنا بندے پیچھے جاؤ نا، ایک ٹھیک ہے رخ قبلہ درست کرے گا باقی تھوڑا بندہ سفر بناؤ نے کیا کھلتے ہیں سوالا جنازہ پڑھنے آئے سارے سفا تو بغیر کھلتے ہوتے چار ادھر یہ سب بننی ابھی یہ ادھی ہوئی ہے جی. اور کیا بندہ اپنی سفا درست کرو، سیدھی کرو، سب سیدھی کرو، قبلہ اپنا اپنا درست کرو سارے. بخشی تھوڑی دیر پیچھے ایک دوسرے کی نہ تکو، اپنا اپنا قبلہ درست کرو والا یہ جڑے بندے کھلتے ہو. چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے، اللہ تعالیٰ کے درود واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا واسطے، حاضر اس میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف سارے بندے نیت کری تے جتیاں اپنی اپنی لائن ہو تے کوشش کرا کرو وے صرف کجی دا جنازہ پڑھا کرو. الحمدللہ رب العالمین.
बच्चा लोग बाहर हो जाओ, बच्चा लोग पाँच के बीच में बड़ी भी सारे इजाजत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन इलाहुल आलमीन। जितनी मरतबा दुरूद पाक सूरत फातिहा शरीफ सूरत इखलास शरीफ और जितने कलिमात की बात नमाज जनाजा ने तमाम अहबाब ने शिरकत की है इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह में गुल मंजूर फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह हदियतन तोहफा पेश करते हैं गुल मंजूर फरमा। तमाम अंबिया इकराम तमाम औलिया इकराम तमाम शुहदा इकराम साबिश करने गुल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन खुसूसन बिलखुसूस इस कलाम पाक साहब जुगना चुगना करके मरहूम मगफूर सैयद मोहम्मद इमदाद साहब इफ्ता साहब ने साबिश करने गुल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन इनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनों को माफ फरमा। जिंदगी में अगर हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद से कोई गलती को तो ये माफ फरमा। इलाहुल आलमीन आने वाली सारी मुनाजिल आसान फरमा। कब्र दी मंजिलां शर्दियां मंजिलां आसान फरमा। जन्नत फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत और पहचान नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको भी अपनी अपनी मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या आमीन। ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा
विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओ विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओ विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا